پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کی۔ الیکشن کمیشن نے لاہور کے 90% پولنگ سٹیشن حساس قرار دے دیے۔ لاہور سے 44 حلقوں کے لیے کل 4403 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں 3540 پولنگ سٹیشن حساس قرار، لاہور میں 813 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دے دیے گئے ہیں۔ حساس پولنگ سٹیشنز کے بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے لاہور کے 90% پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے دیا ہے۔ لاہور سے 44 حلقوں کے لیے کل 4403 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن کے مطابق 3540 پولنگ سٹیشنز حساس قرار ہیں۔ لاہور میں 813 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی انتخابی مہم جاری۔ شہباز شریف آج گلشن راوی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف حلقہ NA 127 کا دورہ بھی کریں گے۔ مریم نواز ٹاؤن شپ بازار میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج گلشن راوی میں مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے۔ حلقوں کے دورہ کے موقع پر وہ گلشن راوی فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے، جو کہ وہاں پر حلقہ NA 129 ہے، اور جو وہاں پر نیچے PPO میں رانا مشہود احمد خان بھی اور مہر اشتیاق جو ہے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اوپر میاں نعمان الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہاں پر الیکشن کیمپین کے لیے میاں محمد شہباز شریف مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے اور وہاں پر جو ہے خطاب بھی کریں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز چیف آرگنائزر، ان کا بھی لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے کا امکان ہے، جس کے بعد وہ لاہور سے باہر جلسے سے خطاب کرنے کے لیے بھی روانہ ہوں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری۔ گلشن راوی گراؤنڈ میں مسلم لیگ نون کا جلسے کی تیاریاں جاری۔ شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ حلقہ NA 129 کے امیدوار حافظ نعمان بھی خطاب کریں گے۔ زاہد عابد سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ جی زاہد، بتائیے اس جلسے کے احوال بارے۔ انتخابات میں چند روز باقی ہیں، جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے آخری جلسے کیے جا رہے ہیں، اور لاہور شہر میں آج مسلم لیگ نون پاور شو کرنے جا رہی ہے گلشن راوی کے علاقے میں، اور گلشن راوی کے گراؤنڈ میں یہ جلسہ گاہ بنائی گئی ہے، جہاں پر مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف خطاب کریں گے۔ اس کے لیے کارکنوں کو 2 بجے کا وقت دیا گیا ہے، تاہم اس وقت جلسہ گاہ میں انتظامات جاری ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکن بھی یہاں پر آنے شروع ہو چکے ہیں۔ جو ابتدائی تمام انتظامات ہیں وہ تقریباً مکمل ہوتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور سٹیج کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو گراؤنڈ کی صورتحال دکھاتے ہیں۔ یہاں پر چیئرز لگا کر اور مسلم لیگ نون کے پرچم لگا کر جلسہ گاہ تیار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی فلیکسز لگائی گئی ہیں، جس پر خاص طور پر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی تصاویر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ NA 129 کے جو امیدوار حافظ نعمان ہیں، ان کی بھی یہاں پر تصاویر نظر آ رہی ہیں، جبکہ PP 172 سے رانا مشہود اسی علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی تصاویر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جو گو کہ شیڈول دیا گیا اس میں 2 بجے کا شیڈول دیا گیا ہے، جس میں میاں شہباز شریف خطاب کریں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کے NA 129 اور PP 172 کے جو امیدوار ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ تاحال اتنا زیادہ نہیں ہے، تاہم انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ تقریباً 3 سے 4 بجے کے قریب جلسہ گاہ میں بھرپور سرگرمی شروع ہوگی، اور یہاں پر تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں خاص طور پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف مسلم لیگ نون کے منشور اور انتخابات کے حوالے سے کارکنوں کو اعتماد میں لیں گے اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے لیے کہیں گے۔ آپ کا شکریہ زاہد۔ عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم جاری۔ PP 149 سے مسلم لیگ نون کے سابق MP چودھری شہباز احمد کا عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان۔ اجلاس میں خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز احمد اور شعیب صدیقی کی شرکت۔ لیاقت علی سے احوال جانتے ہیں۔ جی لیاقت، اس انتخابی مہم بارے بتائیے۔ بالکل، عبدالعلیم خان کے لیے PP 149 میں یہ بڑا بریک تھرو ہے کہ مسلم نون کی تنظیم پر پوری انتخابی مہم ان کی چلائی گئی، اور مسلم نون کے ٹکٹ کے امیدوار اور سابق MP اسی حلقے سے یہ جو شہباز احمد جو ہیں وہ نون لیگ کے سابق MP ہیں، انہوں نے بھی اب آج عبدالعلیم خان سے ملاقات کی ہے اور ان کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور کہا ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے مسلم نون کی حمایت یافتہ امیدوار کو سپورٹ کریں گے۔ باقی مسلم نون لاہور کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر خواجہ عمران
नज़ीर की मौजूदगी में ये फैसला किया गया। और इस मौका पर शोएब सिद्दीकी ने इन रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो शहबाज के साथ चलने से जो है PP 149 में उनकी पोजीशन मुस्तहकम होगी और मुस्लिम लीग की जानिब से यूनियन काउंसिल की सतह पर तमाम कारकुनों को जो ड्यूटियां तफवीज़ की गई हैं, इससे भी जो है अब्दुल अलीम खान की सियासी सरगर्मी में तेजी भी आएगी और हल्के की पोजीशन भी मुस्तहकम होगी। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। जो काम हुकूमत न कर सकी, इंतखाबी उम्मीदवारों ने कर डाला। ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर्स भरपूर इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल होने लगे। अली टाउन से डेरा गुजरा तक ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर इश्तिहारात की भरमार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी इश्तिहारी मुहिम को रोकने में नाकाम। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। जैन, अपडेट कीजिए इस बारे। ये सरकारी इदारों की मुबजना गफलत और कोताही का एक और कारनामा है कि जो काम हुकूमत न कर सकी, इंतखाबी उम्मीदवारों ने कर डाला है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर भरपूर इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सियासी जमातों के उम्मीदवारान की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ये ऑरेंज ट्रेन के पिलर का सहारा लिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक ऑरेंज ट्रेन के 400 से ज्यादा पिलर्स पर इश्तिहारात ही इश्तिहारात नजर आ रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के साथ आने वाले तमाम हलकों के उम्मीदवारान इश्तिहारात लगाने के लिए ऑरेंज ट्रेन का सहारा ले रहे हैं। दूसरी जानिब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर हर किस्म की इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी आयद की गई है और प्लान ये बनाया गया था कि इस ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल करके यहाँ से जो रेवेन्यू है वो हासिल किया जाएगा। लेकिन ये इंतखाबी उम्मीदवारान की जानिब से इन पिलर्स का मुफ्त इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इन पिलर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब मास ट्रांजिट अथॉरिटी इंतजामिया ट्रेन के इन पिलर्स को इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल होने से जैन, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि इससे पहले पाबंदी है पिलर्स पर इश्तिहारात लगाने की, तो क्या अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इस हवाले से क्या कहना है? अभी तक मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से इन पिलर्स पर होने वाली इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ना ही ये इन इश्तिहारात को इन पिलर से उतारा गया है और ना ही इन इंतखाबी उम्मीदवारान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू किया गया है। दर हकीकत ये कहा जाए कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी और शहर लाहौर के दीगर इदारों की जानिब से जैन, क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे PHA बाद में मांग करता है अपने इश्तिहारात की मद में, क्या मास ट्रांजिट अथॉरिटी भी मांग कर सकती है? की तरफ से जो पॉलिसी है वो ये है कि इन ऑरेंज ट्रेन के जो पिलर्स हैं इनको डिजिटल इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस सिलसिले में टेंडर्स भी तलब किए गए हैं। लेकिन अभी ये टेंडर प्रोसेस तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उनको ये खुल्लम खुल्ला उनकी वायलेशन की जा रही है। खुल्लम खुल्ला वायलेशन की जा रही है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। हल्का PP 145 चमन कॉलोनी बेगम कोट मसाइल का गढ़ बन गया। हल्के के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम हैं। सड़कें गलियां भी टूट फूट का शिकार। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइए अवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है? आज बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के हल्का PP 145 लाहौर वन में मौजूद हूँ। कोट शहाबुद्दीन का जो है ये इलाका है। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें चमन पार्क, बेगम कोट, लाजपत रोड समेत जो है वो दिगर जो है वो इलाके शामिल हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। खवातीन से सबसे पहले बात करते हैं कि जी आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से? बेटा, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे पानी साफ हमें मुयसर नहीं है, गंदा पानी आता है। गटरों का वजू करना हमारे लिए मुश्किल है। गैस भी नहीं आती। बच्चों के लिए नाश्ता सुबह इतना लेट हो जाता है क्योंकि गैस 9 बजने से पहले ही गैस भी चली जाती है और कोई अवामी नुमाइंदे यहाँ पे कोई किसी की बात नहीं सुनता। अब इलेक्शन के दिनों पे सभी नजर आएंगे लेकिन बाद में कोई किसी को नहीं पूछता। हत्ता कि सफाई का अमला भी हमारे साथ तामन नहीं करता। गलियों में कितने कितने दिन सफाई वाले नहीं आते। जी आप बताइएगा कि क्या मसाइल हैं? गलियां टूटी हुई हैं सीवरेज के, किन किन मसलों के ऊपर? ईमानदार है ना, वो भी नहीं आते। देखो कूड़ा उत्थे पिया होया, कभी दिल करता आ जाते, कभी 8 दिन बाद, कभी दिल करता नहीं आते है। ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ लगा ने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਈਦਾ। आपने जो है खवातीन की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पे पानी का जो निज़ाम है वो खासा बुसीदा हो चुका हुआ है, पाइप जो है बुसीदा हो चुका है, गैस के मसाइल हैं, अमन अमान के मसाइल के ऊपर खवातीन ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कहा है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं जो वोट लेने के लिए तो नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही इंतखाबात ख़त्म होते हैं तो कामयाब उम्मीदवार जो हैं उसके बाद इन गली मोहल्लों के बासियों की मसाइल हल करने के लिए नज़र नहीं आते। आपको बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्के के मुतअद्दिद इलाके मसाइल का शिकार, मकीनों को अवामी नुमाइंदों से ढेरों गिले शिकवे हैं। फ़हद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के हल्का NA 130 के मुतअद्दिद इलाके मसाइल का गढ़ अकरम पार्क रफाइयाबाद के इलाके में गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज का निजाम बोसीदा है। गटरों का पानी गलियों और बाजारों में मौजे मारता रहता है। पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी मिक्स होने की शिकायत आम। अहले इलाका को अवामी नुमाइंदों से ढेरों गिले हैं। कहते हैं उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाबी के बाद गायब हो जाते हैं, मसाइल जूं के तूं रहते हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं आते हैं, बस वोट लेके चले जाते हैं और जो उनके करिंदे हैं पीछे वही उनको यस और नो की रिपोर्टें पहुँचाते हैं, बस यही काम चलता है। हर घर में गंदा पानी आ रहा है, साथ ना उसके साथ नाले का पानी आ रहा है, जिसकी वजह से जो बहुत सारी बीमारियां जन्म दे रही हैं। हर सियासतदान यहाँ पे आता है, सिर्फ वो अपना वोट मांगने आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। पीने वाले पानी के साथ सीवरेज का पानी आ रहा है। कई बार हमने जो है वो वासा को भी कंप्लेन की है, बिलाल यासीन को भी जो है वो साहब को भी जो है वो हमने अप्रोच किया है डिफरेंट ज़राए से, लेकिन मसला हमारा अभी तक जो है ना वो हल नहीं हुआ है। हालिया इलेक्शन में NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यास्मीन राशिद आज़ाद उम्मीदवार हैं। इकबाल अहमद खान पीपल्स पार्टी जबकि खलीक अहमद भट्ट जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। NA 130 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,08,318 है। 3,23,100 मर्द वोटर्स जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,85,018 है। हल्का PP 163 काना काछा के मसाइल जूं के तूं, इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, हल्के के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम, इलाके का सीवरेज सिस्टम भी नाकारा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता इलेक्शन में हल्के से जीते थे। मुबीन हैदर से मज़ीद जानते हैं। जी मुबीन, बताइए इस बारे। बिल्कुल इसी तरह से है कि इलेक्शन तकरीबन आन पहुंचा है। 30 जनवरी की तारीख हो चुकी है और जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस की गई है और इलेक्शन की कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। मोहल्लों के अंदर जाके कैंपेन्स की जारी। इलाके की सूरत आपको दिखाते हैं कि अपना कैमरामैन ज़िशान आपको मैं रकब में दिखाए। आप देख सकते हैं कि इलाके की जो मोहल्ले की सड़कें हैं, मोहल्ले की जो गलियाँ हैं, उनके अंदर शदीद बदबूदार जो है सीवरेज का गंदा पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा है। इलाका मकीन काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। थ्रू आउट जितनी इलाके की सड़क है वो भी हमें शदीद खस्ता हालत में नज़र आती है। इलाका मकीनों से जानते हैं क्या सूरत हाल है। सर बताइएगा कि आप लोग काफ़ी अर्से से रह रहे हैं यहाँ पर, इलेक्शन भी सर पे है, वोट कास्ट करने के लिए आते हैं लोग के वोट मांगने आते हैं, तो क्या काम भी किए जाते हैं? इसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है यहाँ पर। देखिए जी, लोग बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये हल्का है और बातें ये बड़ी करते हैं। आपने देखा कि पिछले 40 सालों से इनकी हुकूमत है। 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई भी 2-3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आप खुद ही देख लें ये गलियों का क्या हाल है और वादे बुलंदोबाला करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। गलियों की सूरत हाल देख लें। पिछले 2 दफ़ा तो शहबाज शरीफ यहाँ से मुंतखब हुए हैं और उन्होंने इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया और लोगों की राय है कि हम इस दफ़ा ये नून लीग को नहीं वोट देंगे। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना है कि इलाका मकीन गिले शिकवे करते दिखाई दे। मैं कैमरामैन ज़िशान आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि जी बिजली की तारें जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह घरों के दरवाज़ों के आगे झूलती नज़र आती हैं। इलाका मकीनों को कहना है कि जब बारिश होती है तब ये भी बहुत ज़्यादा एक थ्रेट यहाँ पर समझा जाता है, क्योंकि बार बार जो स्टील के दरवाजे होते हैं उनमें करंट भी आ जाता है और क्योंकि इलाके में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये है कि इलेक्शन सर पे है कि जो वादे किए जाते हैं वो वफा किए जाएंगे या फिर इसी तरह से सेटअप रहेगा कि इलेक्शन से पहले जो है उम्मीदवार नजर आएंगे, इलेक्शन के बाद जो है दोबारा से हलकों को वीरान कर दिया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके मोमनपुरा रोड और उससे मुल्हिका मोहल्ले मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। हल्का PP 152 अवामी नुमाइंदों की बेहिसी का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़कों के टूट फूट और सीवरेज बंद होने से लोग मुश्किलात का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं अवामी नुमाइंदे वोट लेकर गायब हो जाते हैं, मसाइल का कोई हल नहीं करता।
लाहौर का सूबाई हल्का PP 152 मसाइल का गढ़ बन गया। अवामी नुमाइंदे हल्के के मसाइल से लाइल्म। हल्के में शामिल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,40,525 है। मर्द वोटर्स 1,28,267 जबकि खवातीन वोटर्स 1,12,259 हैं। हल्के के अहम इलाकों में पाकिस्तान मिंट, कोटली, पीर अब्दुर्रहमान, सराय जोड़ा पीर, बानोर, शाह दरबार, नफीराबाद और शेर शाह रोड शामिल हैं। दारोगा वाला, बिलाल कॉलोनी, फारूकाबाद, सिराजपुरा, अलकादिर स्कीम, दुबई पार्क, मोमिनपुरा, शादीपुरा, रशीदपुरा, हमीदपुरा, गुलशन पार्क, मुराद पार्क और नवीद पार्क भी अहम इलाकों में शामिल हैं। मोमिनपुर रोड, मशीनों वाला भट्टा और मोमिनपुरा पिंड समेत मुल्हिका इलाके तरक्याती कामों से महरूम। सड़कों की टूट फूट, सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, जगह जगह कूड़े के ढेर। सीवरेज का निजाम बोसीदा होने से पीने के साफ पानी से भी इलाका मकीन महरूम है। हल्के के इलाका मकीन कहते हैं कि जो भी आता है वोट लेकर गायब हो जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं, सफाई होती नहीं। सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार हैं। साफ पानी के पाइप्स में भी सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है। पानी इतने फुट फुट खड़ा हो जाता है। गटरां 'ਚ पानी बहुत आ रहा है बाहर। पीने वाला पानी तो इतों भर के लियाईदा बाहरों। और स्कूल को लगा फिल्टर, उतों भर के लियाईदा। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ। ਸੜਕ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, 2-2 ਫੁੱਟ ਗਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ नहीं। सफाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ सर जी ਵੇਖ लो। मुस्लिम लीग नून के मलिक वहीद और PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी नुमान मजीद PP 152 से इंतखाबी मैदान में आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी के अहमद हसीस शाहिद और जमात इस्लामी के आमिर सिद्दीकी भी इसी हल्के से उम्मीदवार हैं। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर राना मशहूद अहमद 43,670 वोट लेकर कामयाब हुए।